السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنتے ہوئے دل میں اتر جاتی ہیں، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ کہانی اس دوسری قسم کی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے زندگی بھر دنیا کو الزام دیا کہ دنیا نے اس کے ساتھ ظلم کیا، لوگوں نے اسے دھوکہ دیا، وقت نے اسے مارا، مگر سچائی یہ تھی کہ اس عورت کی سب سے بڑی دشمن کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی۔ اس کی اپنی ہوس نے اسے وہاں پہنچایا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر یہ بات ابھی نہیں، پہلے وہاں چلتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ ایک تنگ گلی میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں، جہاں 3 بچیاں رہتی تھیں جن کی دنیا میں نہ ماں تھی نہ باپ۔ زبیدہ، نسیمہ اور رابعہ، 3 بہنیں۔ زبیدہ سب سے بڑی تھی، مگر بڑی کہنا بھی مذاق لگتا ہے کیونکہ جب باپ مرا تو زبیدہ کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ نسیمہ 6 سال کی تھی اور رابعہ 4.5 کی۔ ماں پہلے ہی دنیا سے جا چکی تھی۔ زبیدہ کو ماں کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، بس ایک دھندلی سی خوشبو یاد تھی جو کبھی کبھی نیند میں آتی تھی اور آنکھ کھلتے ہی غائب ہو جاتی تھی۔ باپ رکشہ چلاتا تھا، صبح سے رات تک محنت کرتا اور جو کچھ کماتا وہ 3 بچیوں کے کھانے اور کرائے میں خرچ ہو جاتا، مگر کم از کم ایک چھت تھی، ایک سہارا تھا، ایک آدمی تھا جو رات کو واپس آتا تو بچیاں دوڑ کر دروازے پر جاتی اور اس کی گود میں چڑھ جاتی۔ پھر ایک دن وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ باپ رکشہ چلاتے ہوئے گرا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ محلے والوں نے چندہ کر کے کفن دفن کیا۔ 3 بچیاں قبرستان میں کھڑی تھیں۔ نسیمہ اور رابعہ رو رہی تھیں، مگر زبیدہ خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ شاید اتنی چھوٹی عمر میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ابھی جو ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یا شاید اس کی آنکھیں اس دن خشک ہو گئی تھیں تاکہ آنے والے برسوں کے آنسوؤں کے لیے جگہ بچا سکیں۔ باپ کے مرنے کے بعد محلے والوں نے کچھ دن مدد کی، کسی نے کھانا بھیجا، کسی نے کپڑے دیے۔ بوڑھی خالہ نصرت جو سامنے والے مکان میں رہتی تھی، وہ روز آ کر بچیوں کو کھانا کھلاتی اور رات کو ان کے پاس سو جاتی، مگر یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلا۔ لوگوں کی اپنی زندگیاں تھیں، اپنے مسائل تھے، اپنے بچے تھے۔ آہستہ آہستہ مدد کم ہوتی گئی اور ایک دن وہ بھی بند ہو گئی۔ خالہ نصرت نے آخری بار آ کر زبیدہ کا سر چوما اور کہا، بچی، اللہ تمہارا سہارا ہے۔ میری اپنی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، اور پھر وہ بھی نہیں آئی۔ 8 سال کی زبیدہ اب 3 بچیوں کے گھر کی سربراہ تھی، ایک ایسے گھر کی جہاں نہ کھانا تھا نہ پیسے تھے، اور کرائے کی تاریخ سر پر کھڑی تھی۔ زبیدہ نے محلے میں کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ کسی نے دھتکار دیا، کسی نے کہا اتنی چھوٹی بچی سے کیا کام کرا لیں، کسی نے ترس کھا کر 10-20 روپے دے دیے، مگر پھر محلے کی ایک بیوٹی پارلر والی بیگم صفیہ نے زبیدہ کو دیکھا۔ بیگم صفیہ سخت مزاج عورت تھی، مگر بے دل نہیں تھی۔ اس نے زبیدہ سے کہا، صفائی کا کام کرے گی؟ فرش دھونا، تولیے صاف کرنا، کچرا اٹھانا، صبح سے شام تک، بدلے میں اتنا دوں گی کہ 3 وقت نہیں مگر 2 وقت کی روٹی چل جائے۔ زبیدہ نے بغیر سوچے ہاں کر دی۔ اگلے دن سے وہ پارلر پہنچ گئی۔ 8 سال کی بچی جس کے ہاتھ اتنے چھوٹے تھے کہ جھاڑو بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ صبح سے شام تک فرش رگڑتی، گندے تولیے دھوتی، بالوں کے گچھے اٹھاتی اور شام کو تھکی ہاری گھر لوٹتی۔ نسیمہ اور رابعہ گھر میں اس کا انتظار کرتی۔ جب زبیدہ واپس آتی تو دونوں بہنیں دوڑ کر اس سے لپٹ جاتی جیسے کوئی ماں لوٹی ہو۔ زبیدہ جو کچھ پیسے لاتی ان سے بہنوں کے لیے روٹی لیتی، پھر کرایہ جوڑتی، اور اگر کچھ بچتا تو خود کھا لیتی، ورنہ خالی پیٹ سو جاتی۔ رات کو وہ تینوں ایک پرانے گدے پر سوتی، زبیدہ بیچ میں ہوتی اور دونوں بہنیں اس کے دونوں بازوؤں میں سمٹ جاتی۔ زبیدہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور دل ہی دل میں کہتی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، کبھی نہیں۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ زبیدہ بڑی ہوتی گئی اور پارلر کا کام بھی بڑھتا گیا۔ بیگم صفیہ نے آہستہ آہستہ تنخواہ تھوڑی بڑھا دی، مگر اتنی کبھی نہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، بس اتنا کہ مرا نہ جائے۔ زبیدہ نے نہ اسکول دیکھا نہ کتاب۔ اس کی زندگی میں صرف 3 چیزیں تھیں، بہنیں، پارلر اور زندہ رہنے کی ضد۔
मगर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे जुबैदा बड़ी होती गई, उसके चेहरे पर एक ऐसा हुस्न नमूदार होने लगा जो गुर्बत की धूल में भी छुप नहीं सकता था। 13-14 साल की उम्र में पार्लर आने वाली औरतें उसे गौर से देखने लगती। 15 साल की उम्र में लोग उसके बारे में बातें करने लगे और 16 साल की उम्र तक जुबैदा ऐसी हसीन लड़की बन गई कि जो भी उसे देखता ठहर जाता। लंबे घने स्याह बाल जो कमर तक आते थे, गंदमी रंगत जो धूप में सुनहरी हो जाती थी, और आंखें, अल्लाह की कसम वो आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई समंदर भरा हुआ, गहरी, खामोश और एक दर्द लिए हुए जो देखने वाले को अपनी तरफ खींचता है। मगर जुबैदा को अपने हुस्न का अंदाजा नहीं था। वो तो बस फर्श धोती थी और घर जाती थी। उसे क्या खबर थी कि उसकी ये खूबसूरती जो अभी अभी पनपना शुरू हुई है, यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है और उसके कदमों तले से जमीन खींच लेगी। जुबैदा 16 साल की हो चुकी थी और अब वो पार्लर में सिर्फ सफाई नहीं करती थी, बल्कि बेगम सफिया ने उसे छोटे मोटे काम भी सिखा दिए थे। बाल धोना, तौलिए गर्म करना, खवातीन को पानी देना। मगर जुबैदा की हैसियत वो ही मुलाजमा की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब जब वो पार्लर में चलती थी तो खवातीन की नजरें उस पर ठहर जाती थीं। कोई कहती, ये लड़की तो महंगे से महंगे मॉडल से भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई कहती, अगर इसे सही कपड़े पहना दो तो शहर की मलका लगे। मगर जुबैदा इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसे बस शाम को मिलने वाले पैसों से मतलब था, जिनसे नसीमा और राबिया का पेट भरना था और छोटे से मकान का किराया भी देना था। मगर एक दिन पार्लर का दरवाजा खुला और एक ऐसी औरत अंदर दाखिल हुई जिसकी आमद से पूरे पार्लर की फिजा बदल गई। बेगम सफिया खुद उठकर खड़ी हो गईं और बाकी खवातीन खामोश हो गईं, जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। ये नगीना बेगम थी, शहर की सबसे मशहूर और ताकतवर रक्कासा। नगीना बेगम। नगीना बेगम का नाम महलों से लेकर हवेलियों तक गूंजता था। बड़े बड़े जागीरदार, सियासतदान और ताकतवर लोग उसकी महफिलों में हाजिरी लगाते थे। नगीना बेगम की उम्र 50 साल के करीब थी, मगर इसका रोब ऐसा था कि 20 साल की लड़कियां भी उसके सामने सर झुकाकर खड़ी होती थीं। वो पार्लर में दाखिल हुई और बेगम सफिया ने फौरन बेहतरीन कुर्सी पेश की। बेगम नगीना बैठी और उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसी लम्हे जुबैदा सामने से गुजरी, हाथ में तौलिए थे और सर झुका हुआ था। नगीना बेगम की नजरें जुबैदा पर जम गईं और एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल खामोश हो गई। फिर नगीना बेगम ने बेगम सफिया का बाजू पकड़ा और पूछा, ये लड़की कौन है? बेगम सफिया ने कहा, ये जुबैदा है, यतीम है बेचारी, सफाई का काम करती है यहाँ। नगीना बेगम ने जुबैदा को सर से पांव तक देखा। फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, मगर वो मुस्कुराहट नर्म नहीं थी, बल्कि उसमें एक हिसाब था, एक तिजारती नजर थी जो माल की कीमत लगाती है। नगीना बेगम बोली, इसके नक्श देख रही हो? ये लड़की पूरे शहर पर राज करेगी। लोग इसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। ये फर्श धो रही है यहाँ। ये तो कदमों तले हीरा रौंदने वाली बात है। बेगम सफिया ने हंसकर कहा, नगीना बेगम, ये गरीब घर की बच्ची है। इसका और शहर पर राज करने का क्या ताल्लुक? नगीना बेगम ने बेगम सफिया की बात सुनी, मगर उसकी नजरें जुबैदा से हट नहीं रही थी। उस दिन नगीना बेगम पार्लर से चली गई, मगर अगले हफ्ते फिर आई। इस बार उसने जुबैदा को सीधा अपने पास बुलाया। जुबैदा डरती हुई आई और सामने खड़ी हो गई। नगीना बेगम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बच्ची, तू यहाँ फर्श धोकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तेरी बहनें भूखी सोती हैं ना? मेरे घर आ जा। सफाई का ही काम है, मगर तनख्वाह दुगनी दूंगी। तेरी बहनों का पेट भी भरेगा और तुझे भी आराम मिलेगा। जुबैदा ने सुना और उसके जहन में फौरन नसीमा का वो चेहरा आया जो कल रात भूख से रोते हुए सोई थी। राबिया के वो फटे हुए जूते याद आए जिनके नीचे से उंगलियां नजर आती थीं। खाली डिब्बों वाला बावर्ची खाना याद आया जहां कभी कभी रात को तीनों बहनें सिर्फ पानी पीकर सो जाती थीं। जुबैदा ने आंखें झुकाईं और धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेगम साहिबा, मैं आ जाऊंगी। नगीना बेगम मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे शिकारी ने जाल में शिकार फंसा लिया हो। जुबैदा को उस वक्त नहीं मालूम था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होगा। अगले दिन जुबैदा ने बेगम सफिया से अलविदा ली और नगीना बेगम के घर पहुंच गई।
नगीना बेगम का घर एक बड़ी हवेली नुमा कोठी थी जिसकी दीवारें ऊंची थीं और दरवाजे भारी। अंदर से अवध की खुशबू आती थी और फर्श इतने चमकदार थे कि उनमें चेहरा भी नजर आता था। जुबैदा ने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। नगीना बेगम ने उसे घर दिखाया और कमरा अलाट किया। शुरू के दिन ठीक रहे। जुबैदा सफाई करती, खाना लगाती, कपड़े समेटती और तनख्वाह बहनों को भेज देती। मगर नगीना बेगम की नजरें हर वक्त जुबैदा पर रहती, जैसे कोई अपने मंसूबे का अगला कदम सोच रहा हो। फिर एक शाम नगीना बेगम ने जुबैदा को अपने कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद किया और कहा, तू बहुत खूबसूरत है जुबैदा, मगर खूबसूरती का कोई फायदा नहीं अगर इसे इस्तेमाल ना किया जाए। आज से मैं तुझे रक्स सिखाऊंगी। जुबैदा घबरा गई और बोली, बेगम साहिबा, मैं तो सफाई के लिए आई हूँ। नगीना बेगम ने सख्ती से कहा, सफाई वालियां सड़कों पर मिलती हैं, तेरे नक्श सफाई के लिए नहीं बने। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे एक शागिर्द चाहिए। तू मेरी शागिर्द बनेगी। जुबैदा ने इनकार किया, मगर नगीना बेगम ने हर रोज उसे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। पहले कदम, फिर हाथों की हरकत, फिर आंखों के इशारे। जुबैदा पहले भागना चाहती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम थमने लगे। फिर एक रात नगीना बेगम ने कहा, कल रात तू मेरे साथ महफिल में चलेगी। और जुबैदा की आंखों में खौफ उतर आया, क्योंकि वो जानती थी कि नगीना बेगम की महफिलें आम महफिलें नहीं होती। जुबैदा ने इनकार किया। उसने कहा, बेगम साहिबा, मैं ये नहीं कर सकती। बेगम साहिबा, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ सफाई का काम करना है। मैं महफिल में नहीं जाऊंगी। मगर नगीना बेगम ने इसका बाजू पकड़ा और उसे करीब खींचा। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो पहले दिन थी। अब वहां सिर्फ सख्ती थी और एक ऐसा रोप जो जुबैदा के पांव जमा दे। नगीना बेगम बोली, सुन ले जुबैदा, तू सोचती है तेरे पास इंतखाब है। तेरी दो छोटी बहनें हैं जो तेरी तनख्वाह से जिंदा हैं। अगर कल से तनख्वाह बंद हो जाए तो उनको कौन खिलाएगा? तू वापस जाएगी उसी पार्लर में फर्श धोने, मगर वहां भी तेरी जगह किसी और ने ले ली है। फिर क्या करेगी? सड़क पर बैठकर भीख मांगेगी और बहनों को भी साथ बिठाएगी। ये वो जुमले थे जिन्होंने जुबैदा के अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। नसीमा का भूखा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और राबिया की वो आवाज कानों में गूंजी जो कल रात बोली थी, आपा, आज भी खाना नहीं है। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए, मगर नगीना बेगम ने उसे रोने नहीं दिया। उसने जुबैदा का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, रो मत, महफिल में आंसू नहीं चलते, मुस्कुराहट चलती है। उस रात जुबैदा ने मजबूरन महफिल में कदम रखा। नगीना बेगम ने उसे सुर्ख रंग का लिबास पहनाया था, जो जुबैदा ने जिंदगी में पहली बार पहना था। आईने में उसने खुद को देखा तो पहचान ना सकी। ये वही लड़की थी जो कल तक फर्श धोती थी, मगर आज उसका अक्स किसी और ही दुनिया का लग रहा था। महफिल एक बड़े कमरे में लगी थी, जहां मोटी मोटी कालीनें बिछी हुई थीं और हवा में धुआं और इत्र की मिली जुली बू तैर रही थी। एक तरफ मसनदों पर ताकतवर मर्द बैठे थे, मोटे मोटे जिस्म, भारी अंगूठियां और आंखों में एक भूख जो खाने की नहीं थी। नगीना बेगम ने पहले खुद रक्स किया और महफिल गर्म की। फिर उसने हाथ के इशारे से जुबैदा को बुलाया। जुबैदा के पांव कांप रहे थे और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मगर नगीना बेगम की आंखें साफ कह रही थी, आ जा, वरना सब खत्म। जुबैदा आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उसने पहला कदम उठाया। महफिल में बैठे लोगों की नजरें जुबैदा पर जम गईं। एक लम्हे के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। जुबैदा के चेहरे पर खौफ था, मगर उसके हुस्न में एक ऐसी कशिश थी जो खौफ को भी खूबसूरत बना रही थी। महफिल के सबसे आगे वाली मसनद पर एक आदमी बैठा था, जिसकी मौजूदगी से बाकी सब लोग भी दबे दबे लग रहे थे। ये सुल्तान महमूद था, शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर बिजनेसमैन, टेक्सटाइल का बादशाह जिसकी फैक्ट्रियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। सियासतदान उसके दरवाजे पर खड़े होते थे और पुलिस उसके इशारे पर चलती थी। सुल्तान की उम्र 50 के करीब थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो हर चीज की कीमत लगा लेती थी। जब जुबैदा ने कांपते हुए रक्स शुरू किया तो सुल्तान की नजर उस पर ऐसे जमी जैसे शिकारी की नजर शिकार पर जमती है। महफिल खत्म होने के बाद सुल्तान ने नगीना बेगम को इशारे से बुलाया और धीमी मगर पक्की आवाज में सिर्फ एक जुमला कहा, ये लड़की मुझे चाहिए।
नगीना बेगम ने मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश तक न की। उसने भारी रकम तय की और सुल्तान ने फौरन हाँ कर दी, और जुबैदा बेगम एक सौदे की तरह बिक गई, बगैर उसकी मर्जी पूछे, बगैर उससे एक लफ्ज कहे। जैसे बाजार में कोई चीज खरीदी जाती है, वैसे ही जुबैदा की कीमत लगी और नगीना बेगम ने रकम गिन कर जेब में रख ली। सुल्तान महमूद ने जुबैदा से निकाह कर लिया, मगर ये निकाह किसी मोहब्बत की कहानी का आगाज नहीं था, बल्कि ये एक मलकियत का माहदा था। सुल्तान ने जुबैदा को खरीदा था, और खरीदी हुई चीज पर मालिक का हक होता है। सुल्तान यही समझता था। निकाह के बाद जुबैदा सुल्तान की हवेली में पहुंची तो उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। इतना बड़ा घर उसने जिंदगी में नहीं देखा था। ऊंची छतें, संगे मरमर के फर्श, भारी पर्दे, नौकर चाकर हर तरफ। गाड़ियां बाहर खड़ी थीं और बावर्ची खाने में वो खाने पक रहे थे जिनका नाम भी जुबैदा ने कभी नहीं सुना था। वो लड़की जो कल तक खाली पेट सोती थी, आज उसके सामने दस्तरखान पर पीसियों पकवान सजे थे। मगर सुल्तान ने पहले ही दिन वाजे कर दिया कि इस घर के असूल क्या हैं। उसने जुबैदा को बिठाया और बोला, आज से तू सिर्फ मेरी है। बाहर का दरवाजा तेरे लिए बंद है। तेरी वो दो बहनें, उनसे मिलना बंद। वो जिंदगी जो तूने नगीना बेगम के घर में देखी, वो खत्म। रक्स खत्म, महफिलें खत्म, सब खत्म। तेरी दुनिया अब इस हवेली की चार दीवारी है। जुबैदा ने सुना और उसका दिल बैठ गया। बहनों से मिलना बंद, ये सुनकर उसकी आंखों में फौरन आंसू आ गए। वो बोली, साहब, नसीमा और राबिया मेरी छोटी बहनें हैं। उनका मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे उनसे मिलने दें। सुल्तान ने सर्द नजरों से देखा और कहा, मैंने जो कहा वो सुन ले और समझ ले। ये घर मेरे असूलों से चलता है, तेरे आंसुओं से नहीं। जुबैदा खामोश हो गई। उस रात वो अपने नए कमरे में बैठी बहनों को याद करके रोती रही। नसीमा का चेहरा आंखों के सामने था और राबिया की आवाज कानों में गूंज रही थी, मगर इस हवेली की दीवारें इतनी मोटी थीं कि इसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। सुल्तान ने चंद दिनों में नसीमा और राबिया को भी किसी दूर जगह भिजवा दिया। जुबैदा को बताया गया कि उनकी देखभाल हो रही है, मगर कहाँ है ये नहीं बताया गया। जुबैदा का आखिरी रिश्ता भी कट गया। दिन गुजरने लगे। जुबैदा को वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। महंगे कपड़े, जेवरात, खूबसूरत कमरा, नौकरानियां जो उसके इशारे पर हाजिर होती, मगर जुबैदा खुश नहीं थी। ये सुनहरी कफ्स था, बाहर से चमकदार मगर अंदर से तंग और घुटन भरा। सुल्तान दिन भर कारोबार में मसरूफ रहता और रात को वापस आता तो जुबैदा से तवक्को रखता कि वो खुश हो, मुस्कुराए, उसकी खिदमत करे, मगर जुबैदा के अंदर एक और जंग जल रही थी। एक ऐसी जंग जो किसी को नजर नहीं आ रही थी। नगीना बेगम के घर में जो महीने उसने गुजारे थे, वो सिर्फ रक्स के महीने नहीं थे। वहां जुबैदा ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां जिस्म की कीमत लगती थी, जहां हुस्न एक हथियार था और ख्वाहिश एक तजारत। नगीना बेगम के घर में सिर्फ रक्स नहीं होता था, वहां और भी बहुत कुछ होता था जो बंद कमरों के अंदर रहता था। जुबैदा ने वो सब देखा था और आहिस्ता आहिस्ता खुद भी इस दलदल में कदम रख दिया था। पहले मजबूरी थी, फिर आदत बनी और फिर एक ऐसी लत लग गई जो नशे से भी ज्यादा खतरनाक थी। जिस्म फरोशी की लत जो उसकी रगों में जहर की तरह उतर चुकी थी। निकाह के बाद सुल्तान ने सोचा कि जुबैदा अब सिर्फ उसकी है, मगर जुबैदा एक मर्द से उकता चुकी थी। सुल्तान की मोहब्बत उसे बोझ लगती थी और उसका कुर्ब उसे कैद महसूस होता था। जुबैदा के अंदर की वो भूख जो नगीना बेगम के घर में जागी थी, वो खामोश नहीं बैठ रही थी। वो बहनों से कट गई, दुनिया से कट गई, मगर अपनी ख्वाहिशात से न कट सकी। और फिर वो दिन आया जब सुल्तान पहली बार कारोबार के सिलसिले में 3 दिन के लिए शहर से बाहर गया। हवेली खाली थी, सिर्फ नौकर चाकर थे और जुबैदा अकेली थी। उस रात जुबैदा अपने कमरे में बैठी थी और उसकी नजरें खिड़की से बाहर तारीकी में देख रही थीं, मगर उसके अंदर की तारीकी बाहर की तारीकी से कहीं ज्यादा गहरी थी, और वो तारीकी अब उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस रात जुबैदा ने वो कदम उठाया जो उसकी जिंदगी का सबसे तबाहकुन कदम साबित होने वाला था। हवेली में कई मर्द मुलाजिम थे, ड्राइवर, माली, बावर्ची, दरबान। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हवेली की फिजा बदल जाती थी।
وہ روب جو سلطان کی موجودگی سے قائم رہتا تھا وہ اس کے جاتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا تھا۔ زبیدہ نے اس خلا کو محسوس کیا اور اس کے اندر کی وہ بھوک جو مہینوں سے دبی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھا لیا۔ اس نے ایک مرد ملازم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ پہلی بار ملازم خود بھی ڈرا ہوا تھا۔ یہ مالک کی بیوی تھی اور اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب تباہ ہو جائے گا، مگر زبیدہ نے اسے اس طرح قریب کیا کہ اس کا ڈر پگھل گیا۔ وہ رات گزر گئی اور صبح سب کچھ معمول پر آ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سلطان واپس آیا تو زبیدہ نے ایسا چہرہ بنایا جیسے اس نے 3 دن صرف اس کی یاد میں گزارے ہوں۔ سلطان نے اسے گلے لگایا اور کہا، تو میری سب سے قیمتی چیز ہے زبیدہ۔ مگر سلطان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی قیمتی چیز نے 3 دنوں میں کیا کیا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اب زبیدہ کے لیے اسے روکنا ممکن نہیں تھا۔ ہر بار جب سلطان کاروبار کے لیے باہر جاتا، زبیدہ کے اندر کا وہ نشہ جاگ اٹھتا۔ پہلے ایک ملازم تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ زبیدہ کو اب ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ اس نشے نے اس کے اندر سے خوف نکال دیا تھا اور اس کی جگہ ایک بے باکی آ گئی تھی جو تباہی کی طرف لے جانے والی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ حویلی کی دیواریں موٹی ہیں، دروازے بند ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں جانتا، مگر زبیدہ بھول رہی تھی کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور بند کمروں میں بھی آنکھیں چھپی ہوتی ہیں۔ حویلی میں ایک ملازمہ تھی جس کا نام پروین تھا۔ پروین خاموش طبیعت عورت تھی جو برسوں سے سلطان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ سلطان کی وفادار تھی اور حویلی کے ہر کونے پر اس کی نظر رہتی تھی۔ پروین نے پہلے سے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زبیدہ کا رات کو دیر تک جاگنا، ملازموں کا اس کے کمرے کے قریب جانا، صبح زبیدہ کے چہرے پر وہ تھکاوٹ جو نیند نہ آنے کی نہیں بلکہ کسی اور ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ پروین نے خاموشی سے نظر رکھنا شروع کی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا مگر اس کی آنکھیں ہر رات جاگتی رہیں، اور پھر وہ رات آئی جب پروین نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ رات کو کسی کام سے اٹھی اور زبیدہ کے کمرے کے قریب سے گزری تو دروازے کی دراڑ سے اندر کا منظر نظر آ گیا۔ زبیدہ بالکل صحیح سلامت تھی اور اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی اور اس دھوکے میں اسے کوئی شرم نہیں تھی۔ پروین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ چپ رہ، یہ تیرا معاملہ نہیں ہے، مگر اس کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ سلطان صاحب نے اس لڑکی کو گلی سے اٹھایا، اسے عزت دی، نکاح کیا، سب کچھ دیا، اور یہ ان کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ پروین نے کئی دن سوچا، رات کو نیند نہیں آتی تھی اور دن کو زبیدہ کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر غصہ ابلتا تھا۔ آخر کار ایک دن پروین نے فیصلہ کر لیا۔ جب سلطان کاروبار سے واپس آیا تو پروین نے اس سے ملاقات کی اور سب کچھ بتا دیا، ایک ایک بات، ایک ایک رات کا حساب اور وہ منظر جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سلطان سنتا رہا، اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ بجھ گئی۔ ایک لفظ نہیں بولا، بس اٹھا اور خاموشی سے حویلی کے اندر چلا گیا۔ زبیدہ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اس کی زندگی کا سب سے تاریک باب اب شروع ہونے والا ہے۔ سلطان خاموشی سے حویلی کی سیڑھیاں چڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے کوئی سایہ چل رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں وہ غصہ تھا جو چیختا نہیں بلکہ اندر ہی اندر جلاتا ہے۔ سلطان نے زندگی میں بہت دھوکے دیکھے تھے، کاروبار میں، سیاست میں، دنیا داری میں، مگر جو دھوکہ اس کی اپنی بیوی نے دیا وہ ایسا زخم تھا جو کسی مرہم سے نہیں بھر سکتا تھا۔ وہ آدمی جس نے زبیدہ کو گلی کی دھول سے اٹھایا تھا، اسے اپنا نام دیا تھا، اپنی حویلی میں جگہ دی تھی، آج اسی عورت نے اس کی عزت کو پاؤں تلے رون دیا تھا۔ سلطان زبیدہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچا اور ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے آنکھیں بند کی، شاید آخری بار سوچ رہا تھا کہ کاش پروین نے غلط دیکھا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ سچائی وہی ہے جو سنائی گئی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ زبیدہ بستر پر بیٹھی بال سنوار رہی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آپ آ گئے؟ آج جلدی آ گئے؟ آج؟ مگر سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور زبیدہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں زبیدہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر ان آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ اب وہاں صرف ایک خالی پن تھا جو مردہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا تھا۔
सुल्तान ने जुबैदा की खामोशी देखी और उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मरने लगी। जुबैदा जो मसनूई मुस्कुराहट दिखा रही थी अब वो खत्म हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है? सुल्तान ने जेब से एक कागज निकाला और जुबैदा के सामने रख दिया। जुबैदा ने नजर डाली और उसका रंग सफेद हो गया। ये तलाक के कागजात थे। जुबैदा के हाथों से कंघी गिर गई और उसका जिस्म कांपने लगा। वो बोली, ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? सुल्तान ने पहली बार जुबान खोली और सिर्फ एक जुमला कहा, मुझे सब पता चल गया है जुबैदा, सब कुछ। ये 3 अल्फाज जुबैदा के कानों में ऐसे गूंजे जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। उसका चेहरा जर्द हो गया और आंखों में वो खौफ आ गया जो किसी मुजरम की आंखों में उस वक्त होता है जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। वो सुल्तान के पांव पर गिर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मुझे एक मौका दे दे। सुल्तान ने अपने पांव पीछे खींचे और खड़ा हो गया। उसकी आंखें सूखी थीं, आंसू नहीं थे, सिर्फ एक मुर्दा सी नजर थी। वो बोला, मौका उसको दिया जाता है जिससे गलती हो जाए। तुमसे गलती नहीं हुई जुबैदा, तुमने जानबूझकर ये सब किया, बार बार किया, मेरे घर में, मेरे बिस्तर पर, मेरे मुलाजमों के साथ। हर लफ्ज जुबैदा के सीने में छुरी की तरह उतर रहा था, मगर वो जानती थी कि सुल्तान सच बोल रहा है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं था। सुल्तान दरवाजे की तरफ मुड़ा और बोला, सुबह तक ये घर खाली कर दो। जो कपड़े पहने हो वो तुम्हारे हैं, बाकी सब मेरा है। और एक बात याद रखना, मैं दुनिया को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी इज्जत भी इसी में है कि लोगों को पता ना चले कि मेरी बीवी ने मेरे साथ क्या किया, मगर तुम खुद जानती हो कि तुमने क्या किया है, और वो सच्चाई तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगी। दरवाजा बंद हुआ और जुबैदा फर्श पर बैठी रह गई। आंसू थम नहीं रहे थे, मगर ये आंसू पछतावे के नहीं थे। ये इस खौफ के थे कि अब क्या होगा। महल खत्म हो गया, नौकर खत्म हो गए, गाड़ियां खत्म हो गईं, सब एक रात में ही खत्म हो गया। सुबह होने से पहले जुबैदा हवेली से बाहर निकली, खाली हाथ, टूटी हुई और अकेली। दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और इस आवाज के साथ जुबैदा की जिंदगी का वो बाब भी बंद हो गया जो शायद कभी नहीं खुलना था। मगर उसके आगे जो बाब खुलने वाला था वो इससे भी ज्यादा तारीक और खौफनाक था। जुबैदा हवेली से निकली तो बाहर अंधेरा था। आसमान पर तारे थे, मगर जुबैदा की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची थी। उसके पांव नंगे थे और जिस्म पर सिर्फ वो कपड़े थे जो रात को पहने हुए थे। जेब में न पैसे थे न कोई सहारा। वो सड़क पर खड़ी हो गई और दाएं बाएं देखा, किधर जाए, किसके पास जाए, कौन इसे अपनाएगा। बहनों का ख्याल आया, मगर नसीमा और राबिया का तो उसे अता पता ही नहीं था। सुल्तान ने निकाह के बाद उन्हें कहाँ भेजा किसी को मालूम नहीं था। जुबैदा अकेली थी, ऐसी अकेली जैसे पूरी दुनिया में उसका कोई ना हो। वो पैदल चलने लगी, बिला मकसद, बिला सिमत, सिर्फ चलती रही, जैसे पांव खुद ब खुद हरकत कर रहे हों, मगर जहन मुर्दा हो चुका हो। सुबह हुई तो जुबैदा एक गंदी गली में पहुंच चुकी थी। भूख उसे मार रही थी और प्यास से होंठ खुश्क हो चुके थे। उसने एक दुकान से पानी मांगा तो दुकानदार ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, भाग यहाँ से, भिखारियों को पानी नहीं देता मैं। जुबैदा ने सुना और खामोशी से आगे बढ़ गई। वो औरत जो कल तक हवेली में नौकरों से खिदमत करवाती थी, आज सड़क पर एक गिलास पानी की मोहताज थी। मगर ये तो अभी शुरुआत थी। आने वाले दिनों में जुबैदा ने वो जिल्लत देखी जो उससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। वो लोगों के घरों में गई काम मांगने, मगर किसी ने नहीं रखा। किसी ने दरवाजे पर ही धुतकार दिया और किसी ने अंदर बुलाकर ऐसी शर्तें रखी जो जुबैदा के लिए काबिल कबूल नहीं थी। रात को वो किसी गली के कोने में सो जाती और सुबह उठकर फिर चलने लगती। दिन भूख में गुजरता और रात खौफ में। एक दिन जुबैदा ने नगीना बेगम का दरवाजा खटखटाया। वही नगीना बेगम जिसने उसे इस दलदल में धकेला था। मगर नगीना बेगम ने दरवाजा खोला और जुबैदा को देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। जुबैदा ने रोते हुए कहा, बेगम साहिबा, मुझे पनाह दे दे, मेरा कोई नहीं रहा। नगीना बेगम ने ठंडी आवाज में कहा, तू अब किसी काम की नहीं रही जुबैदा, सुल्तान ने तुझे निकाल दिया। अब तू बाजार में टूटे हुए बर्तन बर्तन की तरह है जिसे कोई नहीं खरीदता। यहाँ से जा और दोबारा यहाँ मत आना। दरवाजा जुबैदा के मुंह पर बंद हो गया। उस लम्हे जुबैदा ने समझा कि नगीना बेगम ने कभी उससे मोहब्बत ही नहीं की थी।
वो सिर्फ एक ताजिर थी जिसने जुबैदा को माल समझकर इस्तेमाल किया, और जब माल की कीमत गिर गई तो फेंक दिया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। जुबैदा दर बदर भटकती रही, उसका हुस्न मुरझाने लगा। वो आंखें जिनके बारे में नगीना बेगम ने कहा था कि पूरे शहर पर राज करेंगी, अब इनमें सिर्फ थकावट और खालीपन था। वो लंबे स्याह बाल अब उलझे हुए और गंदे थे। वो गंदमी रंगत जो धूप में सुनहरी हो जाती थी, अब धूल और थकावट में मिट्टी जैसी हो गई थी। मगर कुदरत का अजाब अभी पूरा नहीं हुआ था। इन भटकने के दिनों में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने जुबैदा का जिस्म हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गईं। तफसील किसी को मालूम नहीं और जुबैदा ने कभी किसी को बताया नहीं कि उस रात क्या हुआ था। बस इतना मालूम था कि जब वो अस्पताल में होश में आई तो उसके जिस्म का निस्फ हिस्सा खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि टांगे बचाना मुमकिन नहीं था और जुबैदा को व्हील चेयर पर बैठना पड़ेगा हमेशा के लिए। जुबैदा ने ये अल्फाज सुने और कुछ न बोली, न रोई न चीखी, बस छत को तकती रही, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था जो रद्द अमल दे सके। उस लम्हे जुबैदा ने जान लिया कि ये सब कुछ किसी जालिम ने नहीं किया, इसकी अपनी हवस ने उसे इस हाल तक पहुंचाया था, और ये सच्चाई हर जिस्मानी दर्द से ज्यादा तकलीफ दे थी। अस्पताल में जुबैदा ने 3 हफ्ते गुजारे। कोई मिलने नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला। बिस्तर पर लेटी लेटी वो छत के पंखे को घूमता देखती रहती और सोचती रहती कि जिंदगी ने कितना अजीब मोड़ लिया है। 8 साल की उम्र में जब बाप मरा तो 3 बहनें थीं, गरीब थीं मगर साथ थीं। आज ना बहनें हैं, ना टांगे, ना इज्जत, ना कोई अपना। अस्पताल का खर्च कौन अदा करेगा, ये सवाल भी उसे खाए जा रहा था। मगर अल्लाह ने कहीं न कहीं से रहम भेजा। अस्पताल के एक बूढ़े वार्ड बॉय ने जुबैदा का हाल देखकर अपनी जेब से कुछ पैसे जमा किए और जुबैदा के लिए एक सस्ती व्हीलचेयर का इंतजाम कर दिया। जब जुबैदा को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वो बूढ़ा उसे दरवाजे तक ले गया और बोला, बेटी जो हुआ सो हुआ, अब आगे देख। अल्लाह किसी को इतना नहीं मारता कि वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए। जुबैदा ने उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं बोली। उसके अंदर अल्लाह का नाम सुनकर जो महसूस होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि एक कड़वाहट उबली जो उसी के हलक तक आई। उसने दिल में सोचा, अल्लाह ने मुझे इतना मारा है तो वापसी का क्या रास्ता हो सकता है। मगर वो बूढ़े से कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से व्हील चेयर पर बैठी बाहर निकल गई। जुबैदा के पास कुछ नहीं था, मगर सुल्तान की हवेली में रहते हुए उसने थोड़े बहुत पैसे छुपा कर रखे थे जो उसके कपड़ों में सिले हुए थे। वो पैसे बहुत कम थे, मगर इतने जरूर थे कि एक छोटे से मकान का चंद माह का किराया अदा हो सके। जुबैदा ने एक तंग गली में एक कमरे का मकान किराए पर लिया। मकान मालिक एक बूढ़ी औरत थी जिसने व्हील चेयर पर बैठी जुबैदा को देखकर तरस खाया और किराया भी मामूल से कम लिया। जुबैदा उस एक कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर लिया, जैसे दुनिया से नाता तोड़ लिया हो। 4 दीवारी, एक छत, एक व्हील चेयर, यही अब जुबैदा की पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया थी। साल गुजरने लगे एक के बाद एक। जुबैदा बूढ़ी हो रही थी, मगर वक्त के साथ उसके अंदर की तलखी और गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो अल्लाह से नाराज थी, हालांकि दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि कसूर उसका अपना है, मगर इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। एतराफ से ज्यादा मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं होता, और जुबैदा सारी जिंदगी इस एतराफ से भागती रही। वो दुनिया को इल्जाम देती रही, नगीना बेगम ने मुझे बर्बाद किया, सुल्तान ने मुझ पर जुल्म किया, दुनिया ने मुझे धुतकारा। मगर जो सच्चाई सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी वो ये थी कि सबसे बड़ा जुल्म उसने खुद अपने आप पर किया था। तन्हाई ने जुबैदा का मिजाज बदल दिया। वो तल्ख हो गई, सख्त हो गई, बेएतमाद हो गई। हर इंसान उसे धोखेबाज लगता था और हर मेहरबानी के पीछे उसे कोई ना कोई मतलब नजर आता था। 20 साल गुजर गए। जुबैदा अब 60 साल की बूढ़ी औरत थी। झुर्रियों भरा चेहरा, सूखे सफेद बाल और आंखें जिनमें कभी समंदर भरा होता था, अब उनमें सिर्फ खालीपन था। उसने नर्स रखने का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि अकेले रहना अब मुमकिन नहीं रहा था। खाना बनाना, सफाई करना, अपने जख्मों की देखभाल करना, ये सब अकेले करना अब उसके बस में नहीं था। मगर नर्स रखना और नर्स को बर्दाश्त करना दो अलग अलग बातें थी। पहला नर्स आया, 3 दिन में भाग गया, दूसरा 1 हफ्ता टिका, तीसरा 2 दिन भी ना रह सका, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
सब आए और सब के सब भाग गए। जुबैदा का तल्ख मिजाज, उसका खामोश गुस्सा, उसकी बेएतमादी और रात को अचानक चीखना चिल्लाना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सातवां नर्स जाते हुए बोला, बेगम साहिबा, आपको नर्स नहीं, मुआवजे की जरूरत है। जुबैदा ने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर खामोश बैठ गई। उस रात उसने सोचा कि शायद वाकई अब कोई नहीं आएगा। शायद यही तन्हाई इसकी सजा है जो उम्र भर भुगतनी होगी। मगर उसे नहीं मालूम था कि आठवां नर्स आने वाला है, और इस बार सिर्फ नर्स नहीं होगा वो। सातवीं नर्स के जाने के बाद जुबैदा ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी को नहीं बुलाएगी, बस अकेली ही रहेगी जब तक रह सकती है, और जब नहीं रह सकेगी तो मौत आ जाएगी। उसे अब मौत से भी डर नहीं लगता था, बल्कि सच कहा जाए तो वो मौत का इंतजार कर रही थी। मगर दिन गुजरते गए और जुबैदा का जिस्म उसका साथ छोड़ने लगा। व्हील चेयर से बिस्तर पर आना और बिस्तर से व्हील चेयर पर जाना भी अब मुश्किल होने लगा था। एक दिन वो व्हील चेयर से गिर गई और फर्श पर घंटों पड़ी रही। चीखने का फायदा नहीं था क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मालिक मकान ने आकर शाम को उसे उठाया और डांटते हुए बोली, बेगम साहिबा, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? कोई ना कोई रख लें अपने पास, वरना किसी दिन मर जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जुबैदा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी थी तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। ये आंसू तन्हाई के थे, बेबसी के थे, और इस एहसास के थे कि दुनिया में वाकई उसका कोई नहीं रहा। अगले दिन मकान मालिकन ने खुद एक एजेंसी को फोन किया और आठवीं नर्स का इंतजाम करवाया। जुबैदा को बताया गया कि एक नया लड़का आ रहा है जो देखभाल करेगा। जुबैदा ने सर्द आवाज में कहा, भेज दो, वैसे भी 3 दिन से ज्यादा टिकेगा नहीं। कोई नहीं टिकता मेरे पास। मगर फिर भी उसने मना नहीं किया। शायद इस गिरने वाले वाक़े ने उसे अंदर से हिला दिया था, और उसे एहसास हो गया था कि अगर कोई ना हुआ तो वाकई एक दिन वो इस फर्श पर मरी हुई मिलेगी और किसी को खबर भी नहीं होगी। रात को जुबैदा सो नहीं सकी। बिस्तर पर लेटी एक तरफ दीवार को तकती रही, और इस दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, बस एक ही तस्वीर जो उसके पास बची थी। उस तस्वीर में 3 छोटी बच्चियां मुस्कुरा रही थीं। जुबैदा बीच में थी और नसीमा और राबिया दोनों तरफ। बाप ने मोहल्ले के एक फोटोग्राफर से ये तस्वीर खिंचवाई थी, शायद जिंदगी में ये वाहद तस्वीर जो कभी खींची गई। जुबैदा इस तस्वीर को देखती रही और दिल में वो दर्द उठा जो 20 सालों में भी कम नहीं हुआ था। नसीमा कहाँ है? जिंदा भी है या नहीं? राबिया का क्या हुआ? किसी ने उसे अपनाया या वो भी सड़कों पर है? जुबैदा को कुछ नहीं मालूम था, और ये नहीं जानना हर जख्म से ज्यादा तकलीफ दे था। जुबैदा ने तस्वीर से नजरें हटाईं और सामने रखे आईने में खुद को देखा। झुर्रियों भरा चेहरा, सूखे सफेद बाल जो कभी लंबे घने और स्याह थे, बुझी हुई आंखें जिनमें कभी समुंदर लहराता था, अब वहां सिर्फ सूखा रेगिस्तान था। जुबैदा ने आहिस्ता से कहा, यही वो लड़की है जिसके बारे में नगीना बेगम ने कहा था कि पूरे शहर पर राज करेगी। आज इस लड़की का अपना जिस्म पर भी राज नहीं रहा। आंसू बहे मगर आवाज नहीं निकली। जुबैदा ने बरसों पहले आवाज निकालकर रोना छोड़ दिया था। अब सिर्फ खामोश आंसू बहते थे जो रुखसारों पर से होते हुए तकिए में जज्ब हो जाते थे। रात गहरी होती गई और जुबैदा इसी तारीकी में लेटी सोचती रही कि शायद अब किसी नर्स की भी जरूरत नहीं, शायद अब बस मौत का इंतजार है। मगर जुबैदा को नहीं मालूम था कि कल जो आठवां नर्स आने वाला है वो सिर्फ इसके जिस्म की देखभाल करने नहीं आ रहा, वो अपने साथ एक ऐसा इंकिशाफ लेकर आ रहा है जो जुबैदा की पूरी जिंदगी की बुनियाद हिलाकर रख देगा, और उसके माजी का वो बाब खोलेगा जो 20 सालों से दफन था। रात के 3 बजे थे और जुबैदा की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटी सामने की दीवार को घूर रही थी जहां 3 बच्चियों वाली वो पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। अंधेरे में तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी, मगर जुबैदा को नजर आने की जरूरत नहीं थी। वो तस्वीर उसकी आंखों में बसी हुई थी। नसीमा की वो मुस्कुराहट जिसमें सामने के 2 दांत टूटे हुए थे, राबिया का वो मासूम चेहरा जो खुद जुबैदा, बीच में खड़ी 8 साल की बच्ची जिसकी आंखों में उस वक्त भी एक संजीदगी ऐसी थी जो इतनी छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। जुबैदा ने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं, मगर तस्वीरें चलती रहीं। बाप का धुंधला चेहरा, पार्लर का गंदा फर्श, नगीना बेगम की मुस्कुराहट जिसके पीछे शिकारी छुपा था, सुल्तान की वो सर्द नजर जिसने आखिरी रात उसे देखा था,
اور وہ سڑکیں جہاں وہ در بدر بھٹکی تھی۔ 60 سال کی زندگی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، اور ہر منظر میں درد تھا۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جسے یاد کر کے دل کو سکون ملے۔ صبح ہوئی، مگر زبیدہ کے لیے صبح اور رات میں فرق مٹ چکا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو بستر سے ویل چیئر پر منتقل کیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہو چکے تھے۔ دوپہر کو مالک مکان آئی اور بولی، بیگم صاحبہ، ایجنسی والوں نے بتایا ہے کہ نیا لڑکا آج شام تک آ جائے گا۔ زبیدہ نے بغیر دیکھے کہا، آنے دو، ویسے بھی 3 دن سے زیادہ نہیں ٹکے گا۔ کوئی نہیں ٹکتا۔ شام ڈھلی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مالکن مکان نے دروازہ کھولا اور ایک نوجوان لڑکا اندر داخل ہوا۔ سادہ چہرہ، معمولی کپڑے، کندھے پر ایک پرانا بیگ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی۔ اس نے سلام کیا اور ادب سے اندر آیا۔ زبیدہ نے ویل چیئر سے اسے دیکھا۔ ویسا ہی لگتا تھا جیسے پہلے ساتھ تھے۔ زبیدہ نے سوچا 3 دن اور پھر یہ بھی بھاگ جائے گا، مگر وہ لڑکا 3 دن میں نہیں بھاگا۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا ہفتہ۔ زبیدہ نے اپنی عادت کے مطابق اسے دھتکارا، ڈانٹا، تانے دیے، مگر وہ لڑکا خاموشی سے سنتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ صبح اٹھ کر صفائی کرتا، زبیدہ کا کھانا بناتا، اس کے زخموں کی دیکھ بھال کرتا، اور رات کو دروازے کے باہر بیٹھ کر جاگتا تاکہ زبیدہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً حاضر ہو سکے۔ زبیدہ نے ایک دن اسے خوب سنایا اور بولی، تو بھی پیسوں کے لیے آیا ہے نا؟ جب تنخواہ ملے گی تو بھی بھاگے گا۔ لڑکے نے خاموشی سے سنا اور پھر دھیمی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ، میں بھاگنے نہیں آیا۔ زبیدہ کو اس جملے پر غصہ آیا، مگر اس کے اندر کہیں گہرائی میں کچھ ہلا۔ ایسا جملہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس لڑکے نے وہ سب دیکھا جو پہلے 7 نرسوں نے دیکھا تھا۔ زبیدہ کا غصہ، اس کی تلخی، رات کو چیخنا، خود کو کوسنا، مگر اس نے بھی وہ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا۔ زبیدہ کی تنہائی، اس کا ٹوٹا ہوا دل، اس کا وہ خاموش رونا جو رات کی تاریکی میں تکیے میں جذب ہو جاتا تھا، اور دیوار پر لٹکی 3 بچیوں کی وہ تصویر جسے زبیدہ گھنٹوں تکتی رہتی تھی۔ ایک رات اس لڑکے نے زبیدہ کو دیکھا، ویل چیئر پر بیٹھی تصویر کو چھو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس منظر نے لڑکے کا دل چیر کر رکھ دیا۔ اسے اس بوڑھی ٹوٹی ہوئی عورت پر اتنا ترس آیا کہ اس کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اسی رات فیصلہ کر لیا کہ وہ زبیدہ کو اس تنہائی میں نہیں چھوڑے گا۔ وہ زبیدہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا۔ اگلی صبح لڑکے نے زبیدہ سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ یہاں اکیلی رہ رہی ہیں؟ میرا گھر بڑا نہیں، مگر میری ماں ہے وہاں، بہنیں ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ، آپ کی دیکھ بھال ہوگی۔ زبیدہ نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، تو مجھے کیوں لے جائے گا؟ تجھے میری اتنی فکر کیوں ہے؟ لڑکا مسکرایا اور بولا، کیونکہ آپ کا کوئی نہیں اور ہمارا بس اللہ ہے، اتنا بہت ہے۔ زبیدہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کے ہونٹ کانپے اور آنکھیں بھر آئیں۔ وہ عورت جس کا کبھی غرور آسمان چھوتا تھا، جس کا حسن شہر بھر میں زبان پر تھا، آج ایک اجنبی لڑکے کی رحم دلی کی محتاج ہو چکی تھی۔ زبیدہ کا سارا غرور اور حسن خاک میں مل چکا تھا، اور جو کچھ بچا تھا وہ صرف ایک ٹوٹی ہوئی بوڑھی عورت تھی جسے کسی کی سہارے کی ضرورت تھی۔ یوں اللہ نے اس بے سہارا عورت کو ایک سہارا بھیج دیا، مگر زبیدہ کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا صرف نرس نہیں ہے، بلکہ اس کی تقدیر کا وہ صفحہ ہے جو 20 سالوں سے بند پڑا تھا اور اب کھلنے والا ہے۔